1760th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. राज की बात शो का नाम, सेगमेंट का नाम Women of the Year. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting Raj की बात Women of the Year in association with Pehnawa Boutique. A big thank you to Mampi Reusable Diapers for Children, and can't forget to thank Pooja Shelkes, Live Fit and Nagpur का hospital, Orange City Hospital. मेरी आज की जो मेहमान है एंड कांट फॉरगेट टू थैंक स्टाइलिक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स. मेरी आज की जो मेहमान है, शी वाज बोर्न इन अमरावती एंड हैव बीन स्टेइंग नागपुर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी हैज सर्व्ड टू द एलईडी कॉलेज ऑफ नागपुर फॉर मोर देन 35 years. Loved, respected, followed, and somebody who can inspire you in just few minutes. Please welcome my guest today, Dr. Sheela Kulkarni ma'am. Ma'am नमस्कार. नमस्कार मैम स्वागत आपका राज की बात में. धन्यवाद. तो अमरावती में जन्म हुआ, उसके बाद नागपुर आई और नहीं डायरेक्ट नागपुर नहीं. नागपुर डायरेक्ट नहीं आई. नहीं. My father was in forest department, so Right. it was a transferable job. So we moved around like Gujarat, फिर कोल्हापुर, सातारा, वर्धा, चंद्रपुर, and finally we came to Nagpur. एंड मैम जब नागपुर आई तब कितने साल की थी, कुछ ध्यान में आता है? From fifth standard I am in Nagpur. सो 5th स्टैंडर्ड से नागपुर में. Yeah. मैम क्या सपने थे, क्या बनना था जब छोटी थी, क्या इच्छाएं थी? बनना था, मुझे तो डॉक्टर बनना था. मतलब छुटपन से ऐसा सोचा था कि फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, अपने को डॉक्टर बनना है. सो फिर वो सपना पूरा क्यों नहीं हो पाया, या किस तरह से हो पाया? आई डिडंट गेट एडमिशन, मेरे मार्क्स कम पड़े थे. एंड दैट टाइम लाइक जैसे मेडिकल में नहीं मिलता है तो पैरामेडिकल वाज फार्मेसी. जी. सो आई गॉट एडमिटेड इन फार्मेसी. सो मैम फार्मेसी में जनरली जब कोई एडमिशन लेता है तो उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो यही होता है कि वो फार्मास्यूटिकल ब्रांड में काम करें या फिर अपना. मेरा भी वैसा ही था. अच्छा, मेरा भी बिल्कुल वैसा ही था. फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ. लाइक सी आई गॉट मैरिड. माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो अ फार्मेसी पर्सन. लाइक ओके. he is, and the way I wanted to be in industry, he wanted to be in teaching. So both of us after marriage we worked in Pune College of Pharmacy for 1 year. जी. And since he wanted to be in teaching, so he applied for fellowship and other things. So he got fellowship for PhD. And in Nagpur. That time Nagpur pharmacy department was the best. Now also it is best. But world nationwide, like people from first rank people, they used to come to Nagpur for post graduation research. जी. So when we got the he got the fellowship, we shifted to Nagpur. And Nagpur was of course my hometown, so Right. it was homecoming for me. So that is how we came to Nagpur. मैम जब आप नागपुर में आई और जब आपने फार्मेसी किया, उसके बाद मैम क्या कभी आपने सोचा था कि आप पढ़ाने का काम करेंगे? नहीं, मैंने सपने भी नहीं सोचा था. तो यू डिडंट वांट टू बिकम? No, it is not that I didn't want to. I always thought that I am not fit for teaching. राइट. For simple reason, like जब हमें फार्मेसी में सेमिनार्स भी देने पड़ते थे. जी. So it used to be nightmare for me. You have to stand in front of so many people and speak. I used to sweat. So I never thought that I will be a teacher and I will be able to teach, or I will be head of the department, and this was I never dreamt of also. So फिर आना कैसे हुआ, मतलब See, ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि आप? No, I told you, like my husband got fellowship. He came here, and that time, even now, नागपुर में इतनी फार्मेसी इंडस्ट्रीज ज्यादा है नहीं. जी. And then I saw the advertisement from LAD College. They wanted MPharm person to teach cosmetology. Because I was MPharm, so I applied. I Right. wanted a job, राइट. so I applied there. So then when you started working Yeah. in LED College, Yeah. जो आपका डिपार्टमेंट था मैम, वो वन ऑफ इट्स काइंड था, मतलब इट वाज द फर्स्ट बैच. The iron is like the first batch was out.
and then I entered. Mine was the first appointment. And the first batch was such, like in the third year, they were given the specialization. Right. And when they came out in final year, they realized that they are nowhere. In the sense, they have a degree with the name somewhere cosmetics, but then they don't have enough knowledge. So it was all challenging for me. I was also not from the field. In pharmacy, I had learned only one subject in cosmetics. So my journey started with challenges, you can say so. And those challenges were? Challenges were first to convince myself that I am able to teach. Then convince students that the course is good. After convincing students that the course is good, to make the course good enough so that they have a potential, job potential and other things. So that is another challenge. And everything was happening when I was very inexperienced. But then ma'am, when it comes to the curriculum, Yeah. the curriculum has to also match the industry. How did that go? It had to match industry. Firstly, whatever curriculum was framed here in Nagpur. So the leading academicians from pharmacy department, then Lakshmi Narayan Institute of Technology. So they were called and they framed the syllabus. Okay, but ultimately the product from the department has to be accepted by industry. Right. And now they talk about many things, but that was need of the hour, that whatever I am doing, we are doing rather, that industry should accept it. So I must say, like, I went on pursuing industry, like I went on writing to them, like come here, give some seminar, give some lectures. Whenever industry meet used to be there in Nagpur and I used to come to know, then I used to go personally there so that I can meet people. And you know, I told you, like I was very shy. I used to sweat, like, and doing all those things because एक जुनून था कि ये करना है मुझे बच्चों के लिए. Once I am into it, I have to give my best. Right. So that is how my journey started. मैम एक तरफ आप पढ़ा रही थी और आपके ये सब आपको ये रोजमर्रा की चैलेंजेस आप फेस कर रही थी. मैम पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था उस वक्त? Personal life, when I joined LAD, my son was 9 months old. Oh my God. And my husband was he was about to complete his PhD. But I must say that my husband was all the time very, very supportive. Like, करना है, okay, I will manage. And I belong to Nagpur, so मेरा मायका यहाँ का है. जी. So I had full support from my parents. तो आपके बेटे को पूरी देखरेख में उनका एक बड़ा योगदान रहा है. हाँ, I must say, देख मैं बहुत लकी और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी 2 aunts यहाँ थी. They also used to look after my son. And कंपैरेटिवली देन लोड कम हो जाता है. पर मैम एज अ मदर जब आप रोज जब घर से निकलते हैं और आपका बच्चा इतना छोटा होता है, आई एम श्योर इट माइट बी रियली पेनफुल. इट इज पेनफुल. एंड यू नो, बच्चा भी समझता था कि उसका जब टाइम होता था मेरे आने का, तो ही यूज टू स्टैंड, वैसे बार लगा के रखते थे ना दरवाजे में. जी जी. तो मैं मम्मी यूज टू से कि अब तक ठीक था, लेकिन अब तेरा आने का टाइम हुआ ना, देखो वहां जाके खड़ा है. नाउ ही नोज दैट हिज मदर इज कमिंग. राइट. सो दैट बॉन्डिंग इज देयर. And once I used to be home, like. Then you used to be with him. Of course. मैम उसके बाद जब ये जो पूरा का पूरा एक 35 साल का जो आपने एक करियर रहा है आपका, एक पूरी की पूरी जीवनी रही है जो बहुत कुछ कहती है मैम. एक तो कमिटमेंट कहती है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के प्रति कितनी कमिटेड थी, और इंस्टीट्यूशन में भी आपका कितना ध्यान रखा, ये भी कहता है. How was the experience with LED as a institution? See, like I told you, I was very shy. Right. सामने खड़े रह के मुझे बात नहीं करनी थी. Like, and now what I am? Now you are looking at me. Yeah. Now what I am? I give full credit to LED. पूरा मैं पूरी ग्रूम हुई हूँ वहाँ से. So मैम उस समय में कौन कौन ऐसे प्रोफेसर्स थे जो आपके साथ काम करते थे और आज भी वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, बात करते हैं आपसे? Professors in the sense जो who taught me or from LED? No, those who worked with you at LED. Yeah. So when I joined in 1983, that time our principal was Dr. Rajni Rai. You remember her? Like she was
Lieutenant Governor, Governor of Pondicherry. also after Yes, that. yes. Rupa Rai's mother. Rupa Rai's mother. Right. She was very affectionate lady. Mm-hmm. You know, I can never forget her. Like the way my initial years with her, like for every small reasons I had to approach principal because everything was new. Right. And and the way I used to get guidance from her. Mm-hmm. After that, Dr. Panna Akhani, she was our principal. जी. She also got, I got equal support or you said guidance from her. Then it was a Shamla Nair Mm-hmm. and I think after that for some time only Kotwal madam was there. She was pretty junior to me Mm-hmm. and that is सो मैम बहुत सारे कॉलेजेस है नागपुर में जिनका नारा रहता था कि एलईडी हमारा है, ऐसा नारा रहता था, लेकिन नहीं वो तो हमारे जमाने की बात है जी, उसके बाद वक्त बदल गया। पता नहीं अभी मुझे, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स थे जी, तो वी यूज टू गेट वेरी स्केयर्ड कि एलईडी में जाना, एलईडी की स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट, तो आई नेवर थॉट कि मैं कभी टीचिंग करूंगी और वो भी एलईडी के बच्चों को पढ़ाऊंगी। बट डेस्टिनी जो होता है वो होता है। बट आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर, सो इट मेड मी। मैम कॉस्मेटोलॉजी हैज इट्स $1 billion बिजनेस नाउ, मतलब नाउ इवन इन रिसेशन दैट बिजनेस इज। मैम भले कुछ बिका हो या ना बिका हो, साबुन बिके हैं, क्रीम्स बिकी हैं, बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स विच आर इनटू। थिंग इज सबको अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है जी, सबको अच्छा दिखना है और ये तो कोई मना नहीं कर सकता कि दिखना ही है अच्छा, तो कुछ भी करके तो लेकिन मैम जितने इंडस्ट्री को कोई एंड नहीं है। लेकिन मैम जितने ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, ये प्रोडक्ट्स जब आते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स इन्वॉल्व है और वो वर्कफोर्स को कहीं ना कहीं आपने 35 सालों तक तैयार किया है। जो बेसिक लेवल होता है कॉस्मेटोलॉजी का, वो कम से कम आपने उस पड़ाव को पार करने में बाद में लोगों ने एक्सपर्टीज करने के लिए भले ही लोगों ने अलग कुछ किया हो, लेकिन जो पहला पड़ाव है वो आपने उनको मदद की उनको पार करने के लिए। यू बीन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल्सो। सो मैम पहले के प्रोडक्ट्स और आज के प्रोडक्ट्स में क्या फर्क देखती है मैम एज अ पहले के प्रोडक्ट्स मैं दिस थिंग विल ओनली एक्सप्लेन, लाइक पहले हम कॉस्मेटिक्स बोलते थे जी, तो कॉस्मेटिक्स आर द प्रोडक्ट टू बी अप्लाइड सुपरफिशियली, तो हम लोग ऐसा सोचते नहीं थे कभी कि कॉस्मेटिक्स कभी पेनिट्रेट होके जी स्किन के अंदर जाएंगी, फिर जी, वहां कुछ रिएक्शन आएगी और जी, समथिंग जी। बट नाउ स्लोली द कॉस्मेटिक्स वर्ड इज like now it is a cosmeceutical word has come. So they are very much like near to pharmacy products, drugs products. जी, So very fine difference is there. So now they are no more like, and we don't call that as a beauty products now. They are the personal care products. जी, मतलब हमें अच्छा भी दिखना है जी, लेकिन ये भी नहीं दिखना चाहिए कि मैंने मेकअप किया है। जी, मेरा स्किन ग्लो होना चाहिए लेकिन ऐसा नेचुरल ग्लो है यही दिखना चाहिए। सो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट एक्टिव्स, सो दे पेनिट्रेट टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्किन सरफेस, देयर दे regenerate the skin cells. So all these things, many advances. I tell you, there is a जी, I tell you when I joined this, जी, so people used to say 4 साल में कॉस्मेटिक्स में पढ़ने लायक है क्या? जी, And then we realized after doing 4-year course, it happened to be a terminal course. जी, स्टूडेंट सेड कि मैडम हमें तो इसमें और पढ़ना है। मतलब जो पहले का लोगों का कहना था कि 4 साल क्या पढ़ाओगे, नाउ स्टूडेंट्स केम आउट विद सेइंग कि नहीं हमें आगे पढ़ना है। जी, एंड आगे पढ़ना है तो अगेन वी हैव टू स्टार्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। जी, अगेन वी वेर फर्स्ट जी, टू स्टार्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। जी, पोस्ट ग्रेजुएशन करके स्टूडेंट्स वहां सेटिस्फाइड नहीं थे, दे वांटेड टू गो फॉर रिसर्च। So we started the research center also in our department because that was the only like और कहीं ये कोर्स है ही नहीं जी, तो जो भी करना है हमें ही पहल लेनी थी। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड डू दैट। उसके लिए यूनिवर्सिटी के चक्रे लगाओ, हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट लो, इंडस्ट्री का बहुत सपोर्ट। आज मैं आई वुड लाइक टू शेयर, आज सुबह मुझे मैसेज आया डॉक्टर पुष्कर सोना फ्रॉम HUL. That time he was in the HUL. He's a pretty senior person now. And he said, Sheila, I'm so happy that you are being interviewed today. I remember the old days
एंड यू नो ऐसे इस टाइप का रैपो इंडस्ट्री से हम लोगों ने बनाया था. लाइक पैरामाउंट कॉस्मेटिक्स, वो विनय सिंह है वहाँ के, तो उन्होंने, जब मैं कॉन्वोकेशन जाती थी, आई यूज टू रियलाइज कि हमें तो कोई अवार्ड ही नहीं है अपने बच्चों को. हमें मतलब आई ऑलवेज यूज टू, आई कुड नेवर सेपरेट मी एंड डिपार्टमेंट. जी. सो अपने बच्चों को तो कोई अवार्ड ही नहीं है, नो गोल्ड मेडल. So then again I approached him. So immediately he instituted Tips and Toes Gold Medal. So like for everything, I had to take the initiative because I was the first one. Right. LAD was the first one. Nagpur University was the first one. So whether I had no chance to think whether I can do it or I can't do it, I had to do it. तो करेज कर करके सबके सामने जाके बोल के, तो then the thing started. मैम पहले का एक किस्म का एटीट्यूड दैट यू नो आई वांट टू गेट सम काइंड ऑफ अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन फॉर माय कॉलेज, फॉर माय स्टूडेंट. इट वाज फॉर माय स्टूडेंट्स बिकॉज दे ऐसा विश्वास लेके आए हैं अपने पास कि ये कोर्स करने के लिए, तो वो उसको विश्वास. पर मैम आज का चलता रहे एटीट्यूड, मैम कैसे देखती हैं आप इसको? नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. जैसे अभी सी जितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा जी, उस जमाने में जो स्ट्रगल करना पड़ा, आज वो स्ट्रगल भी कहाँ करना पड़ता है जी. सो नाउ दैट सेट इज लाइक नंबर ऑफ कॉलेजेस हैव कम, इट इज द सिलेबस इज सेट. ओनली थिंग इज दे हैव टू टेक वन स्टेप अहेड. एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो दे डोंट हैव टू स्ट्रगल मच. इंडस्ट्री से रैपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है. सो पीपल नो दैट शी इज फ्रॉम LAD, दैट मीन्स शी हैज XYZ ऑल दीज कैरेक्टर्स इन हर, सो शी इज इजिली एक्सेप्टेड. स्ट्रगल भी कहाँ है, तो वी कैन नॉट ब्लेम कि चलता है वाला. इट इज उनका नसीब है कि चलता है से चल जाता है जी. वो मेरा नसीब था कि मुझे सब कुछ करना है. मैम आई लव दिस स्टेटमेंट कि उनकी किस्मत है कि चलता है फिर उनका चल जाता है बिकॉज किसी ने पहले किया है. बिल्कुल तैयार फाउंडेशन हुआ है. बिल्कुल. तो मैम फिर मतलब ये कहना किसी भी व्यक्ति का या व्यक्ति विशेष का कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है. कुछ तो बुनियाद बनाई है, IIMs IITs लेकर आए हैं जी. ऐसा नहीं कि जो भी हो रहा है वो देश में 2014 के बाद ही हो रहा है. अरे भैया, लेट अस नॉट गो टू पॉलिटिक्स. वी आर हियर टू डिस्कस योर लाइफ, एनीथिंग एल्स देन पॉलिटिक्स, एनीथिing else. But ma'am, why people? I mean, this is I really want to know this, ma'am. Why people don't want to talk about politics? Is it? No, but the show is not for politics, no. No, I agree. But generally. If it would have been for politics, let us have a second show. Okay. I will talk only about politics. So you have an interest? I have an interest. I watch all channels. For simple reason, every channel is owned by some thoughts. Right. So I listen to all thoughts and make my own thoughts. So let us have a separate show on politics. Great. I love this statement again. मैम ये उनकी किस्मत है कि मैम उनका चल जाता है. नहीं चल जाता है, मतलब दे आर एट दिस पोजिशन जी कि अभी जो आइडेंटिटी तैयार करनी थी, जो बुनियाद तैयार करनी, नींव जो रखनी थी, सब कुछ अभी हो चुका है. तो मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है. अभी तो मैं ज्यादा टच में नहीं. एनीवे, बट मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसको लेकर एजुकेशन फ्रेटर्निटी में बहुत उत्साह है, बड़े उत्साहित हैं सब. क्योंकि अब स्टूडेंट्स को ना ही सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा कोर्स भी करने का मौका मिलेगा जिससे या वो अपने पैशन को या फिर एक और एक आय जीवन में उसको मिले, उसके लिए उसकी तैयारी हो पाए. डू यू अप्रिशिएट दिस? आई अप्रिशिएट दिस. सो आई गिव यू व्हाई आई अप्रिशिएट दिस. आई डिड फार्मेसी. एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में बच्चों को ज्यादा पता ही नहीं होता कि उसको क्या चाहिए जी. ये तो पेरेंट्स गाइड करते रहते कि तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है जी. एंड देन यू नो व्हेन दे बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, देन दे फील कि एम आई रियली फिट फॉर दिस. इट इज हैपनिंग दिस डेज जी. तो ऐसा कि इधर से उधर तुमको चेंज करने की फैसिलिटी हो, आई रियली अप्रिशिएट. आई टेल यू माई एग्जाम्पल. आई डिड फार्मेसी, आई एम इन द कॉस्मेटिक्स, बट दैट वॉज लाइक मेरा डेस्टिनी था, मैंने किया एंड आई वॉज सक्सेसफुल इन दैट. My husband, I will tell you, he is a B.Pharm All India topper. Right. Yeah, M.Pharm also he was topper. Like he wanted to be in academics. He's a lawyer. He is a lawyer. Wow. करियर इधर से उधर पूरा होता है, मतलब. और ऐसे करियर शिफ्ट करने की अगर सुविधा कोई एजुकेशन पॉलिसी देती है, एट ए टाइम तुमको अलग अलग ऑप्शंस देके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
Absolutely. That should be welcome. Absolutely. मैम ये जर्नी में आपका बेटा भी बड़ा हो रहा था, Yeah. है ना? और मैम वेयर इज ही नाउ? व्हाट इज ही He is in USA. He's engineer there. डूइंग? He's doing very well. He's married. He has got a 8-9 years old daughter. Who's just above you? She's just above me, and in front of me is my family. Right. And my daughter-in-law, she's American. Uh, he's doing well. Ma'am, have every people- summer we go there. Every 2 years they come here. Great. Ma'am, have past these years, Yeah. have people come up to you and say that should I buy this for for my face? Should I use this soap? Should I use this shampoo? Has people come up to you and ask Yes, you? yes, yes. And has that been boring? Not, I won't say boring, but the requirement, like, the different type of skin textures are there. Right, ma'am. So depending on that, you have to select a product. That all we learn in theory part. Right. And then to tell them, like, you have to know your skin type and then you have to buy this thing. It is very difficult. Because, like, this is from some UK brand, this is something from, I'm getting it from US, so this has to be good or something. They have all those concepts. But mostly these days, and especially in our department also, we give like more stress on indigenous products development. Because we are rich heritage of that. So we give that culture, and we also tell, as far as possible, go for the natural remedies. It is always better. Ma'am, coming back to because you are you have headed a department of cosmetology, and you've helped thousands of students across to grow in this industry. Ma'am, just wanted to know, do you think the Indian market, Indian people are well learned when it comes to buying a product or judging a product? No, No. no. Should they be? They are highly influenced by the advertisement which comes. It's all about the brand value. It is brand value. So whoever is an endorser, people look up to him and buy it. Yeah. They will not go for the quality, and we cannot expect also to them. Now the awareness is increasing. Now the awareness is increasing, but otherwise, like, mostly the main role is played by the advertisements. And I must say that I was like fortunate, like the government of India had constituted a committee. जैसे कॉस्मेटिक्स के फॉल्स क्लेम्स है ना जी कि तुम गोरे हो जाओगे जी फिर बाल एकदम बढ़ जाएंगे जी ऑल टॉल क्लेम्स जी आई वोंट से फॉल्स ऑल टॉल क्लेम्स टॉल क्लेम्स तो उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी जी तो एकेडमिक्स से लाइक many industry people, then people from the advertisement field were there. And I was also invited for that. Wow, That wow. was it. And now it is not a fair and lovely, it is a glow. Glow and lovely. Yeah, yeah. तो ये मैम ये जरूरी है. Something is happening. Something is happening. But थोड़ा सा टॉप गियर पे नहीं है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है. क्योंकि कॉस्मेटिक्स कभी ऐसा जैसे ड्रग्स का ऐसा है कि लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स है. कॉस्मेटिक्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज लग्जरी. तुम्हें कुछ हार्म करेगा तो बहुत हार्म होने के बाद ही पता चलता है. जी तो जी जी ऐसा इतना सीरियसली कभी देखा नहीं. वेयर इज द सेफ्टी एस्पेक्ट्स इन BIS, like Bureau of Indian Standards, like for 20 years I was a nominated member there to formulate the standards of cosmetics. So I really enjoyed that part also. Ma'am, for these 35 years you spent in LED College, you were not just a teacher, a professor, a mentor, but also a guide and a friend of a lot of students there. Yes, and I take pride in that. Great. So, and I'm sure they also are very proud of you. I always say कि LED ने मुझे क्या दिया. जी. मुझे बेटी नहीं थी. जी. मुझे बेटियां मिली है वहाँ से. जी. इतनी प्यार मिला है मुझे. बट मैम वक्त के साथ ये भी हुआ है कि जो लड़कियां हैं वो अब उनका रुझान जो है वो अपने करियर के प्रति ज्यादा है, ना कि गेटिंग सेटलिंग डाउन, गेटिंग मैरिड, हैविंग किड्स. व्हाट्स योर थॉट मैम? कई सारी ऐसी लड़कियां दे डोंट वांट टू मैरी आल्सो. व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? Actually, to begin with,
इंडस्ट्री ऑलवेज यूज टू कंप्लेन कि मैडम योर स्टूडेंट्स आर सो गुड, वी रिक्रूट देम, एंड 2 साल बाद वो शादी करके चली जाती है। जी तो अगर ये ऐसे आपसे सुनेंगे ना अभी इंडस्ट्री, तो जी। दे विल बी वेरी हैप्पी कि चलो ऐसे अपने पास रहने वाली बच्ची है यहाँ से। अब नहीं मैम, वक्त बदला वो है। हुआ है ये जी। करियर ओरिएंटेड, नॉट ओनली इन कॉस्मेटिक फील्ड, इन एवरी एब्सोल्युटली। जी। बट दैट इज अ डेंजर फॉर द फैमिली सिस्टम, डोंट यू थिंक सो? Because I always tell my students, first your family, then your profession. Maybe you will be married somewhere where industry may not be there or the education institution may not be there, but you will find some way or other to use your knowledge. But priority has to be given to family. Family first. Family first. That is my personal. मैम कितने साल हो गए आपके विवाह को? कितने साल हो गए? इतने साल हुए मेरे 42. 42 years. Yeah. Yeah. So, ma'am, you have understood the institution of marriage really closely. Yeah. Ma'am, again, this is a general perspective. I would, request you to throw your light over it. Ma'am, with time, it's also been observed that marriages are also specifically, or especially post-COVID, what been observed, that the number of divorces are increasing. Yes. Which is really alarming to the Indian society. It's an alarming situation. Ma'am, what's your thought about it? It is very alarming situation. Many times I think about it. It is not that that thought always comes in my mind. Why this thing happened? I think the main reason is on single daughter, single son. Now they right from their childhood, they don't have a habit of sharing. When this, whatever they want immediately they get, and when such two people come together and they have to compromise for one another, so they have not learned the compromise word at all in their earlier life so far. And suddenly if you expect when you have to compromise for something else, you have to compromise, it becomes difficult. It becomes difficult. Ma'am, what's your thought about child adoption? Can you specify When it comes to, when women are not able to conceive, they go for IVF or, these kind of, processes of conceiving. But then, can they adopt a child? Why not? If you are able to help some needy person, can give life to make a career of a child who is deprived of that, why should he? Ma'am, but not for the sake of showing others. Right. It should come from inside. Organically. Yeah. Ma'am, for 35 years you have, imparted education and knowledge to students out there. I'm sure they also might have helped you to learn something. What have you learned from them? Of course. अभी भी मैं उनसे सीखती हूँ. अभी भी मुझे टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है, जी, that my old students come and they teach me. Okay. And the relationship is like a very strong bonding. Yeah. Okay. So, ma'am, अब क्या करना है? अब क्या क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में क्या क्या चल रहा है? सी, आई वर्क हार्ड. डिपार्टमेंट को 100% देना था, मैंने दिया. डिपार्टमेंट एक नेशनल लेवल पे खड़ा हो गया. जी. स्टूडेंट्स उनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स streamline हो गया. जी. So whatever I wanted to do for the subject, for the department, I have done. But then I'm in the education field. Right. So I'm associated with Indian Federation of University Women's Associations. I'm a convener of scholarships there. This is like an international body. I'm on the national committee. So where we empower women through education. Giving different projects, giving different scholarships and all. So see, now I want to lead my life in my own way. अभी जो मैंने अभी तक नहीं किया, वो सब कुछ मुझे करना है. जी. ठीक है. मैंने फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दिया, मुझे देना है. जी. मुझे मेरी हॉबीज जो थी
आई लव टू सिंग, हम्म सो मुझे टाइम नहीं था जाना. नाउ आई हैव टाइम, सो आई वांट टू यूज टाइम फॉर माई सेल्फ. बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट फॉरगेट कि मैंने एजुकेशन में थी, तो उसमें का थोड़ा समय निकाल के आई वांट टू बी इन टच विद दिस. सेमिनार्स में जाती हूँ, जी गेस्ट लेक्चर्स देती हूँ, जी बट नॉट 100% लाइक मुझे कहीं एक के साथ जुड़ी हूँ, जी. ऐसा मुझे करना भी नहीं था. एंड मेरे ख्याल से किसी ने करना भी नहीं चाहिए. करना भी नई जनरेशन को चांस देना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल नई जनरेशन को यू हैव टू मेक अ मेड पाथ फॉर देम, एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक दे शुड गेट द फ्रीडम. मैम अब 42 वर्षों से मैम यू बीन मैरिड. Yeah. मैम आई एम श्योर आपने एडवोकेट कुलकर्णी साहब को बहुत कुछ सिखाया होगा. कुलकर्णी साहब ने आपको क्या सिखाया? हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते रहे. मैम आपने सर से क्या सीखा? सर से ये सीखा कि कोई भी चीज अगर तुम हाथ में लेते हो तो कभी छोड़नी नहीं, पूरा करना है. पूरा करना है, हम्म, इस पार या उस पार. जी. यू मे बी फेल्यूर, बट बीच में छोड़ना नहीं. हम्म, वंस यू डिसाइड कि आई हैव टू डू दिस, गो अहेड, डू इट, कम मे व्हाट कम्स, एंड ही इज दैट टाइप. मैम जब मैं, क्योंकि मैम एक रेडियो जॉकी रहा हूँ, है ना, और जब आपको ये कहता है मुझे कि गाना इज वन ऑफ माय हॉबीज. अब तो मुझे गाने को मत. नहीं मैं गाने नहीं, मैं आपको गाने नहीं कहूंगा, लेकिन मैम मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का दिल एक FM चैनल है, और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है. और कुछ ऐसे गाने होते हैं मैम जो हम किसी भी मूड में रहें, अच्छे बुरे किसी भी मूड में रहें, हम वो गाना गुनगुना सकते हैं, है ना. तो कोई ऐसा गाना है आपकी लाइफ का? ऐसा मैं एकदम से नहीं बोल सकती. मुझे गाना गुनगुना बहुत पसंद है, मेरा मूड एकदम ठीक हो जाता है. दैट मच आई कैन से. इट्स अ हीलर. और मैंने गुनगुनाया हुआ गाना दूसरों को भी खुश करता है. दैट मच आई कैन से. सुपर. तो मैम हम एक 2 इंटरव्यूज हमारे पेंडिंग रहेंगे, एक पॉलिटिकल और एक सिंगिंग, जो हम आने वाले दिनों में करेंगे मैम. ओके मैम, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया डॉक्टर शीला कुलकर्णी, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सा ऐसा थॉट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? वैसे लोग मुझे याद करते हैं ऐसे लिखने की. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. वो तो मैम हमेशा करते हैं, बट ऐसी कोई लाइन मैम जो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कोट ऑफ लाइफ है? फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन कोट वॉट एवर कम्स ऑन योर वे, एक्सेप्ट इट. वेदर यू रियली वॉन्ट इट और नॉट, एक्सेप्ट इट, पुट 100% एफर्ट्स एंड सक्सेस इज योर्स. डोंट ग्रम्बल एंड सिट क्वाइटली कि मैं ये नहीं कर. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सुपर. मुझे ऐसा लगता है मैम कि आपकी पूरी जो जिंदगी है उसमें मैम ये जो इनिशिएटिव लेने वाली बात है, जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ क्रेडिट शुड गो टू एडवोकेट कुलकर्णी सर, बिकॉज है ना, क्योंकि मैम उनका ये जो थॉट है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लाइफ का टैगलाइन है कि आप इनिशिएटिव अगर कोई ले तो आप उसमें अपना इतना 100% दें कि जिसके बाद हमारा एक म्यूजिक ग्रुप है जी, दैट इज लेड बाय माय हस्बैंड. ही प्लेज तबला. तो आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, आई लाइक टू सिंग जी. तो जब भी वो मुझे चांस देते हैं गाने जी, तो ही एंश्योर्स कि आई सिंग दैट सॉन्ग टू सच अ परफेक्शन एंड सिलेक्ट अ सॉन्ग विच रियली सूट्स माई वॉइस, एंड सो दैट आई मस्ट गेट वंस मोर देयर. जो भी करना है 100% करो, अपना हार्ट उसमें डालो, अपना सोल उसमें डालो. छोटी छोटी बातें भी में अगर ऐसा करते हो तो सक्सेस इज योर्स. Ma'am, I think people like you, and when they come on my show, I say that ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है मैम कि आपने अपना वक्त दिया, आप इस शो पर आई. समय पर हम अपना शो शुरू नहीं कर पाए टेक्निकल रीजंस की वजह से, लेकिन मैम जो बातें जो मूल बातें जो आपने हमें समझाई, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैम अगर कोई पोटली बना के इन बातों पर सिर्फ चलना शुरू कर दे, इन बातों को रखकर अपने पास. I tell my students all the time. I tell them so they know it. They have to do it.
एब्सोल्युटली। और मैम ये जरूरी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवा अगर इन चीज़ों को पकड़ कर लेके चले तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे वो देश बन जाएगा जिसको पूरी दुनिया आना चाहेगी, इस देश का हिस्सा बनना चाहेगी। I think we are progressing on that level. It's so. या हो जाएंगे मैम। Because every year we go to US every summer, जी and like I think for last 12 years जी this is happening, and every year we find a change in the approach of people. Firstly, oh, you are from India, and slowly, you are from India. राइट So राइट this changes. जी। बट मैम मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अपना बिट अगर दे दे तो वाकई में वो पर्सपेक्टिव और Of course, बदलेगा। of course, और of course. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो आपने मच। मुझे बोलने का सौभाग्य दिया, इसलिए मैं भी थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स। सुपर। ये बहुत मुश्किल है कई बार इन बातों पर चलना, जो बातों का उल्लेख इस इंटरव्यू में डॉक्टर शीला कुलकर्णी ने किया। बिकॉज आप बड़े आसानी से कह सकते हैं, या मैं भी बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि आपने 35 साल काम किया। 35 साल किसी एक इंस्टीट्यूशन को, किसी एक काम को देना कितना कठिन है, उसकी कल्पना हम शायद कर भी नहीं सकते, है ना। ये वही कर सकता है जिसने वो वक्त जिया है। दुर्भाग्य की बात कहें आप कि कई लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस देश को आजाद करने के लिए। सौभाग्य हमारा कि आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर खुली हवा है, हम आजादी से जी सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। ये पुराने लोगों के त्याग से ही आया है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस त्याग के पीछे उनके बलिदान की क्या कहानी है। डॉक्टर शीला कुलकर्णी ने जो बुनियाद बनाई, जो बुनियादी लेवल पे काम किया, आज वो वृक्ष, वो जो बीज है वो पौधा बना, पौधे से वो पेड़ बना, पेड़ से वो आज वृक्ष बना, और वो वृक्ष के आज फल कई सारे लोग मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है। लेकिन हमने वो बीज को नहीं बोलना चाहिए, वो पूरी की पूरी जर्नी को नहीं बोलना चाहिए। हम अपने जीवन में भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले क्या क्या हुआ, क्योंकि देखिए साइकिल है, वक्त है, एक पहिया है, जो वक्त जा चुका है वो वक्त फिर आएगा। लेकिन क्या आप उस समय इतने समर्थ रहेंगे, इतने सक्षम रहेंगे कि आप उसको फेस कर पाए। अक्ल चक्कर में है रफ्तारे दुनिया देखकर, एक को आता एक को जाता देखकर, भूलकर कांधा ना देना जनाजे को मेरे, कहीं शायद वापस जिंदा हो जाऊं सहारा देखकर। देखिए साहब, अगर इंटेलिजेंस से ही सब कुछ हो जाता ना तो बीरबल राजा होता, अकबर नहीं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो कोई भी लक्ष्य को अगर अपने हाथ में लेती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है, तो समझिए वो डॉक्टर शीला कुलकर्णी बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।